स्टार्ट करेंगे। 4 into 5 is equal to 20 books. Since 20 each books. each of the shelf has 5 books, है ना? So 5 plus 5 plus 5 plus 5, how many times? 4 times, because there are 4 shelves. Let me choose this pen. Okay. So, since in repeated addition form, we can write it that in the first cell there are 5 books, in the second cell there are 5 books, even in the third cell there are 5 books, and in the fourth there are 5 books. So, in all 4 times 5. और जैसे ही आप 4 टाइम्स 5 करेंगे आपको कितना मिल जाएगा? 4 टाइम्स 5 is equal to 20. Very good. 20. Okay, can you try for the another one yourself? A shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? 5 buttons in the first of the shirt. 3, 5. In again 15. second shirt there will be 5 3, 5, buttons. 15. Very good. Sir, So, 5. so we'll write 3 times 5 because 5 there are 3 shirts. 15. Good. 15. That's good. Okay. Move to the next question. Keep on solving. साथ साथ सोल्व करते चलेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे. There are 4 fans and each fan has 3 24. blades. What is the total 24. number of blades in all? Write in multiplication form and then try to solve it. 24. How many times? How many times 3? Okay. Let me give you some hint. 4 times 3 or 3 times 4? क्या लिखेंगे इसे? दोनों में आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 4, इसमें से कौन सा सही आंसर है? चेक कीजिए. सर ये ऊपर वाला 4 टाइम्स 3. 4 टाइम्स 3. और किन्हीं का कोई आंसर? 4 टाइम्स 3. 4 times 3. Very good. Because first fan 3 blades, second fan 3 blades, third fan 3 blades, and fourth fan 3 blades. So 4 times 3, and hence this will be the right answer. है ना? Okay. Next one. A box contains 6 apples. How many apples in all will 7 boxes have? अब इसे 6 times 7 और 7 times 6 क्या लिखना चाहिए? सोच लीजिए. 42. नहीं तो हम लोग लिखें कौन सा? 7 times 6 और 6 times 7? 7 times. 7 6. Sir 7 6 times. 7 times 6. 7. Very good. 7 times 6, because first a box contains 6 apples, so 6, second box 6, third box 6, fourth box 6, fifth box 6, and sixth box 6, seventh box भी 6 apples contain कर रहा है. Therefore we write 7 times 6 and this will be our right answer. 7 times 6. Now find out for the other one, how many corners would 4 triangles have? There are total 3 corners in a triangle. अब अगर 4 triangles है तब उसमें कितने corners होंगे? 4 times 3 or 3 times 4? Which will be the correct answer? 4 times 3 or 3 times 4? 12. 3 4 4 12. So, 4 times 3. क्यों? कैसे समझेंगे? तो इसे देखिए, पहले ट्रायंगल का 3 कॉर्नर्स
दूसरे ट्रायंगल का भी 3 corners. In the third there will be 3. In the fourth there will be 3. So how many times we have repeated these 3? 4 times. So we'll write 4 times 3. 4 times 3 is equal to 12. Are you getting? Next, move to the next one and complete this fact, some multiplication facts. 8 into 3, this will have to do yourself. Just I am pausing here, you have to complete this and send in the group. अभी अभी complete करें. 8 times 3 means if we write 3 8 times, 3 plus 3 plus 3 plus in a repeated addition form, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ये 8 टाइम्स जब आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स जब आपने 3 को लिखा तो 8 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? आप सिंपली टेबल पढ़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं. तो 8 टाइम्स 3 विल गिव यू हाउ मच? 8 3 या 8 किसी का भी एक टेबल आप पढ़ सकते हैं. जिसका टेबल आपको पता है उसे पढ़ लीजिए, और नहीं पता है तो फिर ऐड कर लेंगे. बताइए 8 टाइम्स 3 क्या होगा? 24. Very good. So we'll write here 24. Now 3 how many times? 3 times what will give us what? आप अपने मन से अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. Since there are 2 blanks, you are free to choose your answer. Suppose एक बच्चे ने यहाँ लिख दिया 2 means 3 times 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 times 2 is equal to 6. और अगर इस यहाँ पर कोई 2 न लिखकर अगर 4 लिख लिए होते, 2 को नहीं लिखते, तो 3 times 4 कितना हो जाता? 12. तो इस तरह से सभी का आंसर वेरी कर सकता है. यहाँ एवरीवन कैन गेट अदर आंसर्स. जहां भी 2 ब्लैंक है ना, यू आर फ्री टू चूज एनीवन. ओके, सपोज यहाँ फिल करना है अब डैश टाइम्स डैश. हाउ मेनी टाइम्स विल राइट समथिंग? सपोज आई एम गिविंग 7. हाउ मेनी टाइम्स विल राइट 7 टू गेट 42? अब 6 टाइम्स. वेरी गुड. अब समझ में आ रहा है ना? 6 times 7 is equal to 42. And at this time you will notice that you are free to recite table from anyone. You can choose the order. You can recite the table of 7 or you can recite the table of 6. 6 का भी टेबल पढ़ेंगे, 7 का भी टेबल पढ़ेंगे. दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में. ओके, 5 टाइम्स व्हाट इज इक्वल टू 40. 5 कितने टाइम्स हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे? 5 8s आर 40. नेक्स्ट, यहाँ अगर चेक करें फिर से, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं अपने मन से. चलिए मैंने यहाँ 9 लिख दिया. 9 टाइम्स व्हाट will give us 54. 9 का टेबल पढ़ लीजिए. सर हम लोग 6 भी लिख सकते हैं. हाँ, 6 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल. 6 9 और 9 6. यू आर फ्री टू चूज एनी आंसर. यही तो मैथमेटिक्स का खूबसूरती है ना. कोई एक आंसर नहीं होता, जो मन करे जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं आप. नेक्स्ट, 5 टाइम्स व्हाट इज इक्वल टू 35. अब 5 का टेबल अगर याद है तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज एडिशन कर लेंगे. 5 का टेबल सबको पता है ना? यस सर. गुड. तो 5 का टेबल पढ़िए. कितने टाइम्स में 75 आ रहा है? सॉरी 35 आ रहा है. चेक कर लीजिए खुद से पढ़कर.
You are free to recite the table of 5. 5 into Sir, 7. अच्छा, अगर 8 टाइम्स होता तब, क्या? अगर 8 टाइम्स हो जाता तब, 7 टाइम्स में आप कह रहे हैं 35 है, 8 सर रहता आप क्या तब बोल रहे हैं? सर आप 5 सोचिए सर हम इसको बोल रहे हैं 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35। अगर 5 टाइम्स 8 रहेगा तो 35 से ज्यादा होगा या 35 से कम होगा? ज्यादा, बिल्कुल। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ज्यादा। नेक्स्ट पार्ट में यूज करने वाले हैं। वेरी गुड। डैश टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36। 6 का टेबल फिर से पढ़ लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 36? 6 टाइम्स। वेरी गुड। Now again there are two blanks, so you are free to choose any answer. If you write here 1, then this will be 10. If you write 10, 2, then that will be 20. If you write 10, then that will be 100. Anything. Now 9 times, sorry, some, how many times 9 will give you 36? हाँ, 4. Very good. 4. 4 times 9 will give you 36. 9. 4 nines are 36. Very good. Dash times 7 is equal to 28. आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल सीख लिया है ऊपर। 4 सर 7 का 4 4 7 28। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ बना लेना है। 1 टाइम 1 is 2, 2 टाइम्स 1 is 2, 3 टाइम्स 1 will give us 3, 4 टाइम्स 1 will give us 4। तो ये 1 का टेबल बन जाएगा, बना लीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, 3 टाइम्स 1 is equal to 3, 4 टाइम्स 1 will give you 4। सर इसमें सही में आएगा 1 2 3 करके। हाँ, आ जाएगा, क्यों नहीं। ऐसे बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट। सर हाँ, सर ये जो आप टाइम दिए उसमें स्प्रिंग से लिखने का नंबर से लिखना है, नंबर दे रहे हैं। इधर नंबर से, इधर वर्ड्स में। नहीं सर ये टाइम सर वो वर्ड से लिखना है ना सर। हाँ, ये वर्ड से लिखना है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे 5 टाइम्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर वर्ड्स में लिख लेंगे। 5 टाइम्स 1 is 5, 6 ओके times सर 1 is equal to 6, in this way. Okay, let's move to the next part, and this is worth learning. इसे आप आसानी से सीखेंगे और ध्यान से समझेंगे, because we are moving to how we can multiply larger numbers, big numbers. 2 डिजिट नंबर हो तब कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे। 2 टॉफीज वर गिवन। ध्यान से सब लोग को सुनने देंगे, माइक ऑफ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। 2 टॉफीज, and if there were total 34 students in the class, how many toffees were given in all? So first we'll try to find out what are the information given in the question. Total student present is equal to 34, and each student gets 2 toffees. Are you getting? Total students in the class is 34, and the total number of toffees each student gets is equal to 2. तो यहाँ अब हम लोगों को 2 + 2 + 2 इस तरह से सभी 34 स्टूडेंट्स तक जाएगा। सो वी कैन राइट इट, द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज विल बी 34 टाइम्स 2। अब इतने बड़े नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें? टेबल तो हम लोग को 2 का आता नहीं है, 2 का टेबल 10 तक ही हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड आप बता सकते हैं क्या, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? अगर आपके मन में कुछ है तो आप बताइए।
मैं वेट कर ले रहा हूं। सर 34 प्लस 34। 34 प्लस 34, हाँ, रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में ऑर्डर को रिवर्स करके भी कर सकते हैं, एक मेथड। बहुत बढ़िया। और दूसरा मेथड किन्हीं के पास, एक इन्होंने बताया इफ विल ऐड 34 प्लस 34, एक्चुअली इफ विल नोटिस देन दैट विल बी 2 टाइम्स 34। इसको अगर लिखना चाहे ना 34 प्लस 34, देन इट विल बी 2 टाइम्स 34। ये 34 टाइम्स 2 नहीं है, ये 2 टाइम्स 34 है। फिर भी चूंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सेम रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। टोटल 68 टॉपिक्स वर गिवन इन दैट पार्टिकुलर क्लास। या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा उतना आ जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म यूज करके अभी एडिशन नहीं, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं मल्टीप्लीकेशन सीखने का। ठीक है, आइए यहां से समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई करें। सो एक आप बॉक्स बना लिया करें ऐसे, और आपने पढ़ा है हाउ वी कैन स्प्लिट नंबर्स, स्प्लिटिंग ऑफ नंबर्स हमने बहुत सीखा है। तो आप बताइए कि इस 34 में बेसिकली है क्या क्या। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 30 प्लस व्हाट, 30 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 34। 30 प्लस 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख लिया। तो इस नंबर को आप सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया करें, जो भी बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है। तो 30 और 4 बन गया। अब क्या कीजिए कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना था, 2 से, तो आप इस 2 को बाहर बॉक्स में लिख दीजिए, जैसे मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते थे। एंड देन सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली दिस नंबर। 2 को अब 30 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। 2 टाइम्स 30 मीन्स 2 into 3 and then 1 0. So 2 times 30 will give you 60। अगर 2 को आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 60 मिलेगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना मिल जाएगा, आप माइक ऑन कर सकते हैं। 2 टाइम्स 4 विल गिव अस 8। बस इतना ही काम। यहां हमने क्या किया, इस 2 को केवल 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, और जैसे ही 6 मिल गया, एक जीरो को इसको यहां ला दिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लीकेशन तो बहुत आसान होता है। अब 2 30 60 हो गया, लेकिन इसी 2 को अगर हम लोग 4 से भी मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों नंबर को बस आपको कर लेना है ऐड, 68। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बाला मेथड कहलाता है। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया, यहाँ देखिए, ये आपको बॉक्स बनाकर यहाँ बता दिया गया, भारती, ये भारती इन्होंने ऐसा बनाया है, 2 टाइम्स 30 एंड 2 टाइम्स 4 एंड द आंसर इज 68। अब यहां आप जरा चेक करके बताइए हमें, इन अ पिकनिक 4 फ्रूट्स वर गिवन टू एवरी स्टूडेंट, द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट वाज 23। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन। फिर से टॉफीज की जगह पर इस बार फ्रूट आ गया है ना। तो पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, ताकि कैलकुलेट करना आसान हो। नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन द पिकनिक 23, each student gets 4 fruits, so total number of fruits will be 23 times 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा बॉक्स बना लीजिए। आप भी साथ साथ बनाइए, मेरे साथ साथ आप भी बनाएं, और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। इसे
23 को लिखिए 20 प्लस 3, अलग अलग कर लीजिए। यहां तक आपने किया? हैव यू रिटन टिल नाउ एवरीवन? 4 गुड। नाउ 9 we will write here एजुके the number by 92 which we have to multiply। तो किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना था उसे देख लीजिए। we'll have to multiply it by 4। so 4 times 20, हाँ 8, और ये जीरो को लेकर आ जाइए तो ये बन गया 420 टाइम्स 80। अगर केवल 2 टाइम्स रहता तो 8 होता, लेकिन इस बॉक्स में क्या होगा 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3। अब इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए। पहले हमने 12 होता है। 12 होता है, तो अब इन दोनों नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, वी विल एड दीज टू नंबर्स। सो 80 प्लस 12, 80 प्लस 10 will give you 90 and 2 more। रैंडमली आप ओरली सोल्व कर लीजिए, वर्बली। गुड। तो 80 प्लस 10 and 2, 80 plus 10 90, 90 and 2 92। 92 sir। Very good। So the answer will be 92। Next, see here it has been solved in this way। अब आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं। चलिए हम लोग एक और चेक करते हैं, कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। हम लोग बनाएंगे अभी इस क्वेश्चन को 43 इंटू 2। सर हाँ ये प्रैक्टिस का ये जो है आपको कॉपी में दोगे बनाने? हाँ, अभी कॉपी में, इसे कॉपी में ही बनाना है क्योंकि बुक में तो उतना जगह है नहीं कि आप बना सकें। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पहले एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, और इस बॉक्स में ऊपर में एक्सपेंडेड फॉर्म में से स्प्लिट करके लिख लीजिए। 43 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 प्लस 3, है ना। और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो हम लोग यहाँ पर बाहर में लिख लेते हैं 2। और अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली मेंटली भी सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। अभी लिख कर बना लीजिए, बाद में 2 इंटू 14, 2 इंटू 4 पहले चेक कर ले, बाद में एक जीरो रख दे। 80। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, 2 को 3 से, 2 3 जार 2 3 जार 6। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग को ऐड कर लेना पड़ेगा। ऐड कर लीजिए 86। वेरी गुड। सो विल राइट हियर 86। समझ में आ रहा है, केवल हम लोग उसे स्प्लिट कर दे रहे हैं और ऐड कर दे रहे हैं। सो इन दिस वे यू कैन ऐड एनी लार्ज नंबर। तो ये जो प्रैक्टिस टाइम है ना, इसे आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे कॉपी में और सेंड कर देंगे, ठीक है। गुड। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी सम मोर पार्ट, और किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो आप हमें फोन कर लेंगे, पूछ लेंगे हमसे। ओके, टिल देन थैंक यू। हाँ